السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائن۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیا انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسا انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے، اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس، درگاہ روڈ، شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریسیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملا پلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ مشرق وسطی کی جنگ اور بھی تباہ کن موڑ اختیار کر گئی۔ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملہ، فجیرہ اور عمان کی بندرگاہ پر ڈرون کا ملبہ گرنے سے لگی آگ۔ اسرائیل کے شہروں میں ڈرونز اور میزائلز کی بارش۔ حقیقی مستحقین تک فلاحی اسکیموں کے فوائد پہنچانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ سیکریٹریٹ میں کلکٹروں کی کانفرنس کا آغاز، عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت۔ مردم شماری 2027 کا 11 مئی سے آغاز، ہندوستان کی پہلی مکمل ڈیجیٹل مردم شماری کے طور پر تاریخی سنگ میل ثابت ہوگی۔ موبائل ایپ کے ذریعے کی جائے گی گنتی، چیف سیکرٹری کا جائزہ اجلاس۔ ریاست کی تاریخ میں پہلی بار 18,139 میگا واٹ کی ریکارڈ سطح کی برقی طلب کو بغیر کسی تعطل کے کامیابی سے پورا کیا گیا، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کا دعویٰ۔ ایران کے حامی واعظین پر نظر رکھیں، ریاستوں کو مرکز کی ایڈوائزری۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے کہا مودی کا دوغلا پن بے نقاب ہو گیا۔ اور شہر میں نقلی چائے کی پتی اور کپڑے دھونے کے نقلی پاؤڈر کا ریکٹ بے نقاب، 3 افراد گرفتار، بھاری مقدار میں نقلی اشیاء ضبط۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ مشرق وسطی کی جنگ بھیانک شکل اختیار کر گئی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے حملوں میں ایران میں تقریباً 790 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ لبنان میں 50 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ منگل کو ایران نے سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کیا ہے۔ عمان، فجیرہ بندرگاہوں پر بھی ڈرون حملے کیے گئے۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب اور دیگر شہروں میں میزائلز اور ڈرونز کی بوچھاڑ ہوئی ہے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری مشرق وسطی چھوڑنے کی ہدایت دی ہے۔ اس دوران ایک اہم پیش رفت میں ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پیش ہے
तफसीली रिपोर्ट। ईरान ने मंगल को भी खलीजी रियासतों में अमरीकी मफादात पर हमले किए हैं। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाज में डिप्लोमेटिक क्वार्टर में 2 नए धमाके सुने गए। सऊदी अरब की वजारत दिफा के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी ने बताया कि इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक रियाज में अमरीकी सिफारतखाने को 2 ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में इमारत में महदूद पैमाने पर आग लगी और मामूली नुकसान हुआ। इस वाक़े के बाद सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी मिशन ने जिद्दा, रियाज और ज़ोहरान में मुकीम अपने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी की है। अमरीकी मिशन ने खित्ते में किसी भी फौजी तनसीबात तक गैर जरूरी सफर को महदूद कर दिया है और मुमलिकत में मौजूद अमरीकी शहरियों को मशवरा दिया कि वो फौरी तौर पर अपने घरों में रहें। सऊदी वजारत दिफा ने शहजादा सुल्तान एयरबेस के करीब 5 ड्रोन्स को तबाह करने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ रियाज में अमरीकी सिफारत खाने ने हमले की तस्दीक की है और अवाम को सिफारत खाने से दूर रहने की हिदायत दी है। सऊदी अरब की हुकूमत ने अमरीकी सिफारत खाने पर हुए हमले की मजम्मत की है। ईरान पर अमेरिका और इसराइली हमलों की वजह से दुनिया भर में 153 शहर मुतासिर हुए हैं। 504 मुकामात जंग की वजह से नुकसानात का शिकार हैं। अब तक 1039 हमले हुए हैं। ईरान में 790 से ज्यादा लोग जाँ बहक हुए हैं। मुत्तहदा अरब इमारात के फुजैरा बंदरगाह पर मंगल को आग लग गई। मुकामी हुकाम ने बताया कि सुबह फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन के पास ड्रोन को नाकाम बनाए जाने के बाद मलबे के गिरने से आग लगी। मलबे को साफ कर दिया गया है, ताहम किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दुबई के करीब वाक़े अल-मिन्हाद में ऑस्ट्रेलियाई फौजी तंसीब को भी निशाना बनाया गया है। ज़राए के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दिफा ने तस्दीक की है कि मुत्तहदा अरब इमारात में कायम अल-मिन्हाद एयरबेस को ईरान ने ड्रोन हमले का निशाना बनाया। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि इस हमले के नतीजे में तमाम ऑस्ट्रेलियाई फौजी ओहदेदार महफूज हैं। सल्तनत ओमान की दुखम बंदरगाह पर फ्यूल टैंक्स को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया है। ईरान की रियासती न्यूज एजेंसी ने इस हमले की तस्दीक की है। बताया जाता है कि बंदरगाह पर मुतअद्दिद ड्रोन हमले किए गए। नुकसानात, बिलखुसूस जानी नुकसानात को लेकर कोई तस्दीक नहीं की गई है। सल्तनत ओमान की सलाला बंदरगाह पर भी ड्रोन हमला हुआ है। हमले के बाद धमाके की गूंज सुनाई दी और आग के शोले और धुआं भी दिखाई दिया। यहाँ से भी जानी नुकसानात को लेकर कोई इत्तला नहीं मिली है। इसराइल के दारुल-हुकूमत तल अवीव आज फिर खतरों के सरनों से गूंजता रहा। वस्ती तल अवीव में रेड अलर्ट के सरन बजाए गए। बताया जाता है कि ईरान की तरफ से मुसलसल ड्रोन और मिसाइल हमलों की बौछार हुई है। कई लोग शेल्टर होम्स में पनाह लेते हुए देखे गए। इसराइल की दारुल-हुकूमत तल अवीव और दूसरे इलाकों में खतरे के सरन बजने के बाद लोग शेल्टर होम में पनाह लेते हुए नजर आए। कई लोग बंकर्स में ही अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हुए भी नजर आए। ईरान की दारुल-हुकूमत तेहरान और दूसरे शहरों पर भी हमले जारी हैं। गुज़िश्ता रात से लेकर आज दोपहर तक तेहरान और दूसरे शहरों पर मुसलसल हमले किए गए। तेहरान में हलाकतें मजमूई तौर पर 790 से तजावुज़ कर गई हैं। इस दौरान इसराइली फौज के हमलों में शहीद हुई 165 तालिबात की तदफीन का अमल आज अंजाम दे दिया गया। वाज़ेह है कि मिनाब एलिमेंट्री स्कूल पर अमेरिका और इसराइली फौज ने बमबारी की थी और इस बमबारी में 165 तालिबात शहीद हुई थी। मिनाब में लड़कियों के जुलूस जनाजा और तदफीन के मौके पर हजारों की तादाद में लोग शरीक हुए। इस मौके पर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। लोग यहाँ पर सीनाजनी करते और रोते हुए देखे गए। ईरान और उसकी महाजी मलेशियाई जंगजों की तरफ से अमेरिका और इसराइल के मफादात पर बहरीन में भी हमले हुए हैं। ईरान की पासदाराना इनकलाब ने बहरीन में अमेरिका के हवाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान की न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक पासदाराना इनकलाब की तरफ से बयान जारी करते हुए बताया गया कि बहरीन के शेख ईसा इलाके में वाक़े अमेरिकी फौजी अड्डे पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए हैं।
عراق کی حامی ملیشیا تنظیم نے اربیل کے ایک ہوٹل کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس ہوٹل میں امریکی فوجی مبینہ طور پر مقیم تھے۔ ڈرون اور میزائل کے ذریعے ہوٹل کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس خبر کی تصدیق نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی جانی نقصانات کو لے کر کوئی اطلاع سامنے آئی ہے۔ کویت شہر میں بھی آج دوپہر کے بعد خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کویت میں کئی مقامات پر ڈرون اور میزائل حملے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں کئی مقامات پر خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ اس دوران ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایران کی طرف سے انتباہ جاری کیا گیا تھا کہ کوئی بھی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے سے گریز کرے۔ ایران کی بحریہ کی طرف سے آبنائے ہرمز پر نظر رکھی جا رہی ہے اور انتباہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی آبنائے ہرمز کو عبور کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس دوران اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کے پیٹا ٹکوا کے پاس ایران کے حملے کے بعد گاڑیاں جھلسی ہوئی حالت میں دیکھی گئیں۔ تاہم یہاں سے بھی جانی نقصانات کو لے کر کوئی اعداد و شمار سامنے نہیں آئے ہیں۔ ایران کی طرف سے مسلسل ڈرون اور میزائل حملے اسرائیل پر جاری ہیں، لیکن اسرائیل کی طرف سے ہلاکتوں کو لے کر کوئی اعداد و شمار پیش نہیں کیے گئے ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مرکز کی اس ایڈوائزری پر تنقید کی ہے جس میں ریاستوں سے کہا گیا کہ وہ ایران کے حامی کٹر وائزین پر نظر رکھیں۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے الزام لگایا کہ اس ایڈوائزری سے مودی حکومت کا دوغلا پن بے نقاب ہو گیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیوں مسلم دشمن نفرت اور حقارت آمیز تقاریر کو روکنے کے لیے ایسی ایڈوائزری جاری نہیں کی گئی۔ صدر مجلس نے مرکزی حکومت کی طرف سے ریاستوں کو جاری ایڈوائزری پر تنقید کی۔ صدر مجلس نے کہا کہ ایک بابا ہے جس نے کئی بار ضمانت کی شرطوں کی خلاف ورزی کی ہے، مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کو شے دی ہے۔ حکومت نے ایک کانفرنس کی فنڈنگ کی ہے جس میں دستور کو الٹنے کی بات کہی گئی ہے۔ 2023 کے بعد سے انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی تقریریں بڑھ گئی ہیں۔ ایران پر اسرائیل امریکہ حملوں پر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد عوامی مظاہرے ہوئے ہیں جن میں حیدرآباد بھی شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ اے ریونت ریڈی نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں کابینی وزراء، حکومتی مشیران سدرشن ریڈی، نریندر ریڈی، چنا ریڈی، حکومت کے چیف سیکرٹری رام کرشنا راؤ، ڈی جی پی شریدھر ریڈی، اعلیٰ عہدیداران اور مختلف اضلاع کے کلکٹرز بھی اجلاس میں موجود تھے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے افسران کو کئی اہم ہدایات دیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حقیقی مستحقین تک فلاحی اسکیموں کے فوائد پہنچانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ گاؤں کی سبھاؤں میں مختلف فلاحی اسکیموں کے تحت حکومت کی جانب سے فراہم کی جانے والی سہولیات اور فوائد سے عوام کو آگاہ کیا جائے۔ عوامی حکومت کی جانب سے جاری راشن کارڈ، باریک چاول، اندرا مکانات اور 200 یونٹ مفت بجلی کے مستفیدین کی آراء کو عوام تک پہنچایا جائے۔ تعلیمی نظام میں عوامی حکومت کی جانب سے لائی جانے والی تبدیلیوں کے بارے میں عوام میں شعور بیدار کیا جائے۔ سرکاری اسپتالوں کو مضبوط بنانے کے لیے قریبی میڈیکل کالجز سے مربوط کیا جائے تاکہ عوام کو بہتر طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ مڈ ڈے میل ایجنسیوں کو ہر ماہ بلز کی ادائیگی یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ 99 دن پروگرام میں گاؤں کی سطح سے لے کر ضلعی سطح تک عوامی نمائندوں کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے۔ چیف سیکرٹری کے رام کرشنا راؤ نے ڈائریکٹر مردم شماری تلنگانہ بھارتی ہولکرک کے ہمراہ ضلع کلکٹرز کے ساتھ اجلاس میں مردم شماری کے آئندہ عمل اور تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ریاست بھر میں مردم شماری کا پہلا مرحلہ 11 مئی سے شروع ہوگا۔ چیف سیکرٹری نے بتایا کہ 2027 کی مردم شماری ملک کی پہلی مکمل طور پر ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی جو خصوصی موبائل ایپ کے ذریعے انجام دی جائے گی۔ ہاؤس لسٹنگ آپریشن 11 مئی سے شروع ہوگا جبکہ اس سے 15 دن قبل شہریوں کے لیے آن لائن خود اندراج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت دی کہ کوئی بھی گھر، بستی، قبائلی علاقہ یا شہری کچی آبادی مردم شماری سے محروم نہ رہے اور دور دراز علاقوں میں خصوصی توجہ دی جائے۔ اجلاس میں اعلیٰ عہدیداران بھی شریک تھے۔ تلنگانہ نے ریاست کی تاریخ میں پہلی بار 18,139 میگا واٹ کے ریکارڈ سطح کی برقی طلب کو بغیر کسی تعطل کے کامیابی سے پورا کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے اس کامیابی پر محکمہ بجلی کے اعلیٰ عہدیداروں اور عملے کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سنگ میل ریاست کی معاشی ترقی اور مؤثر نظام کی عکاسی کرتا ہے۔ تلنگانہ نے بڑی ریاستوں کے مساوی برقی طلب حاصل کر کے اپنی صلاحیت ثابت کی ہے۔ آئی ٹی، دوا سازی، صنعت اور آبپاشی کے شعبوں میں تیز رفتار ترقی اس اضافے کی اہم وجہ قرار دی گئی۔
टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि राहुल गांधी को नाहक निशाना बनाया जा रहा है, जबकि एप्स्टेन फाइल्स मामले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी घेरे में आ चुके हैं और बीजेपी और आरएसएस को जवाब देना चाहिए। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उन्होंने बताया कि राज्यसभा उम्मीदवारों के इंतखाब पर राहुल गांधी से बात हुई है और 16 उम्मीदवारों की फहरिस्त पेश की गई है। कल एआईसीसी की जानिब से ऐलान मुतवक्का है। 4 बीसी कायदीन ने भी राज्यसभा मौके की ख्वाहिश जाहिर की है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि डीसीसी तरबियती कैंप सख्ती से मुनक्किद हुए और गैर हाजिर रहने वाले 8 सुदूर को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। बाज़ डीसीसी सुदूर ने अरकान असम्बली की अदम ताउन की शिकायत की, जिस पर फौरी बातचीत की गई। उन्होंने बीआरएस पर तनकीद करते हुए कहा कि उसने कॉरपोरेट हिमायत याफ्ता अफराद को राज्यसभा भेजा और तेलंगाना के कारकुनों को नजरअंदाज किया। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस केरला में हुकूमत बनाएगी और हथियार डालकर शामिल होने वाले मावनवाजों का खैर मकदम किया जाएगा। साबिक वजीर टी हरीश राव के हाथों मेडिकल तलबा में इमदादी चेक तकसीम किए गए। ये तकरीब उप्पल के रुकन असम्बली बी लक्ष्मण रेड्डी की निगरानी में मुनक्किद हुई, जिसमें 7 तलबा को माली मदद फराहम की गई। चैरिटी ट्रस्ट के तहत जारी इस मुहिम में रवां तालीमी साल के दौरान मजमूई तौर पर 122 मेडिकल तलबा को तालीमी अखराजात के लिए इमदाद दी गई है। हरीश राव ने कहा कि ये सिर्फ अतिया नहीं बल्कि मुस्तकबिल के सेहत के निज़ाम में एक सरमायाकारी है। उन्होंने मजीद कहा कि साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत के हर ज़िले में मेडिकल कॉलेजेस के क़याम से तिब्बी तालीम के मैदान में इनक़लाब आया, जिससे सरकारी तिब्बी खिदमात मज़ीद मजबूत हुई हैं। तकरीब में पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा और कारकुनान भी मौजूद थे। रुकन पार्लियामेंट मल्लू रवि ने डीसीसी तरबियती इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाने की तजवीज़ का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले भी 2 मौक़े के बावजूद वज़ारत उज़्मा में दिलचस्पी नहीं दिखाई और अवाम के दरमियान रहकर मसाइल को समझने को तरजीह दी। पार्लियामेंट में अवामी मसाइल पर उनकी जदोजहद काबिल सताइश है और अब उन्होंने पहली बार वज़ारत उज़्मा के लिए आमदगी ज़ाहिर की है। मल्लू रवि ने कहा कि मुल्क को इस वक्त राहुल गांधी की क़यादत की ज़रूरत है। उन्होंने भारत जोड़ो और न्याय यात्रा के जरिए मुल्क भर का दौरा करके अवामी मसाइल को करीब से समझा। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये तजवीज़ पेश की। रुकन कौंसिल डॉक्टर डी श्रवण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद की और आवाम को होली की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 5 साल और 3 साल कानून कोर्स के लिए अलग इम्तिहान होने के बावजूद सवालिया पर्चे एक जैसे आने का मामला तालीमी निज़ाम की नाकामी का सबूत है। उन्होंने वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी पर बदइंतज़ामी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि रियासत में तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका है। उन्होंने बनकर बेड्स की खरीदारी में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियों, फीस रिम्बर्समेंट बकायाजात और मुख्तलिफ तरक्याती वादों में नाकामी का भी जिक्र किया। डॉक्टर श्रवण ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में नाकाम हो रही है और तालीमी और इंतज़ामी शोबों में संगीन गलतियाँ हो रही हैं। बीजेपी के चीफ तर्जुमान NV सुभाष ने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी की क़यादत में हर महकमे में नाकामी नजर आ रही है और बेजा इनेदामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों के मकानात को मुख्तलिफ मनसूबों के नाम पर मुनहदिम किया जा रहा है और गैर कानूनी कब्ज़ों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। राहुल गांधी के दौरे और उनके वज़ीर आज़म बनने के दावों को उन्होंने मज़ाक़ ख़ैज़ करार दिया। सुभाष ने मजीद कहा कि रियासत में बेरोज़गारी, पानी की किल्लत और शहरी मसाइल बढ़ रहे हैं, जबकि मरकज़ की जानिब से तेलंगाना की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स फराहम किए जा चुके हैं। तेलंगाना जागृति की लीडर कविता ने राजेंद्र नगर नारसिंगी में मूसा नदी की अराजी पर रियल एस्टेट कारोबार का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज किया। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि गांधी सरोवर के नाम पर गरीबों को बेघर किया जा रहा है। कविता ने सवाल किया कि मूसा नदी की अराजी पर वेंचर क्या हाइड्रा को नजर नहीं आ रहा है। इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए गए। मंडी लाइन अकबरपुरा के अहलियान मोहल्ला की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहुद्दीन, साबिक कॉरपोरेटर्स, मुकामी मजलिस के इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन के अलावा मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। दरगाह यूसुफैन के पास मुकामी मजलिस की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा साबिक़ा कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और अवाम की कसीर तादाद ने दावत इफ्तार में शिरकत की।
इससे कबल कायद मजलिस ने दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी और चादर गुल पेश की। हाईकोर्ट में बम रखे जाने की तल्ला से सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक बैरूनी मुल्क से आउटलुक डोमेन के जरिए शेखर नामी शख्स ने हाईकोर्ट को ईमेल रवाना करते हुए बम रखे जाने की तल्ला दी। इतला मिलने पर पुलिस और बम स्क्वाड अदालत पहुंच गए और अदालत को खाली करवाया। तलाशी मुहिम पर कोई मुश्तबा शय बरामद नहीं हुई। तेलंगाना बीजेपी सदर एन रामचंद्र राव ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में नौजवानों के साथ होली का त्यौहार जोश खरोश से मनाया। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम नौजवानों में मुस्बत शऊर और इज्तिमाई जज्बे को फरोग देते हैं। इस मौके पर उन्होंने रियासत तेलंगाना के तमाम अवाम को होली की मुबारकबाद पेश की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुरा में तरक्याती काम जारी हैं। मंगल को रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने गंगानगर नाले और इसके साथ सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने बताया कि नाले का काम 2 या 3 दिन में मुकम्मल किया जाएगा। सीवरेज लाइन का काम 20 दिन में मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर वासिउद्दीन के अलावा मजलिस के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। शहर में पीर की रात अचानक पेट्रोल पंप्स पर आवाम का हुजूम देखा गया। पता चला है कि सोशल मीडिया और दूसरे जराये से पेट्रोल पंप्स के बंद रहने की इत्तलात पर हुजूम पेट्रोल पंप्स पर जमा देखा गया, जबकि पंप मालिकान का कहना था कि ऐसा कोई अहकाम मौसूल नहीं हुआ है जिसमें पेट्रोल पंप्स की बंद होने की हिदायत दी गई है। कई पेट्रोल पंप्स को स्टॉक खत्म होने पर बंद कर दिया गया, लेकिन आज सुबह मामूल के मुताबिक पेट्रोल पंप्स खुले हैं और किसी भी तरह की कोई अफरा तफरी आज सुबह से किसी भी पंप पर नहीं देखी गई। सीसीएस हैदराबाद ने गोशा महल और अफजलगंज पुलिस के साथ मिलकर नकली चाय की पत्ती के फरोख्त के रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर 2 मार्च को जयराम, किशवाहा सुरेंद्र और हनुमान राम को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से नकली रेड लेबल चाय की पत्ती भारी मकदार में जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन छोटी दुकानों को नकली चाय की पत्ती फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने अवाम से भी अपील की है कि खरीदारी के दौरान एहतियात से काम लें। पुलिस ने इन मुलजिमीन के कब्जे से 1340 नकली चाय की पत्ती के डिब्बों के अलावा नकली सर्फ, मच्छर की नकली कॉइल भी जब्त की है। यदाद्री भुवनगिरी जिले के हुदूद दंडो मलकापुर चोटप्पल के पास आंध्र प्रदेश आरटीसी की बस ठहरे हुए कंटेनर से टकरा गई। इस हादसे में 10 मुसाफिरीन जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक ये बस आंध्र प्रदेश से हैदराबाद आ रही थी। तवाज़ुन खो जाने की वजह से ठहरे हुए कंटेनर से टकरा गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हादसे के वक्त बस में 36 मुसाफिरीन सवार थे। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो,
डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन। जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मशरिक़ वस्ता की जंग और भी तबाहकुन मोड़ इख्तियार कर गई। रियाद में अमेरिकी सिफारत खाने पर हमला, फुजैरा और ओमान की बंदरगाह पर ड्रोन का मलबा गिरने से लगी आग। इसराइल के शहरों में ड्रोन्स और मिसाइल्स की बारिश। हकीकी मुस्तहक़ीन तक फलाही स्कीमों के फ़वाइद पहुँचाने के लिए मौसर इक़दामात किए जाएँ। सेक्रेटेरिएट में कलेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस का आगाज़, ओहदेदारों को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत। मर्दमशुमारी 2027 का 11 मई से आगाज। हिंदुस्तान की पहली मुकम्मल डिजिटल मर्दमशुमारी के तौर पर तारीखी संग मील साबित होगी। मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी गिनती। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। रियासत की तारीख में पहली बार 18,139 मेगावाट के रिकॉर्ड सतह की बरकी तलब को बगैर किसी तात्तुल के कामयाबी से पूरा किया गया। नायब वजीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का का दावा। ईरान के हामी वाइजीन पर नजर रखें, रियासतों को मरकज की एडवाइजरी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, मोदी का दोगलापन बेनकाब हो गया। और शहर में नकली चाय की पत्ती और कपड़े धोने के नकली पाउडर का रैकेट बेनकाब। 3 अफराद गिरफ्तार, भारी मकदार में नकली अशिया जब्त। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज ही इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।